Hello students, I am MK Vijay, your SST teacher. In this video we are going to discuss about the sugar industry. As you know, sugar industry is agro based industry, and India, that is famous for agricultural country, and due to it sugar cane is playing a vital role in the economy of India. For the study, we have need first the importance of the sugar industry. Under it, we can say its rank is the third largest industry in terms of its contribution to the net value added by manufacture. मीन्स भारत में इसका रैंक तीसरा है. संपूर्ण मैन्युफैक्चरिंग में एडेड वैल्यू के आधार पर इसे तीसरा रैंक दिया गया है. एज वेल एज about 3.25 lakhs workers are present in this industry. Actually, we have need to give attention towards its job opportunities. It gives job opportunity to 3.25 lakhs. As well as it gives indirect employment for 25 million cultivator of sugarcane. यह फैक्ट्री है, इसके कारण 250 लाख किसान शुगर केन उत्पादन में लगे हुए हैं. वह इंडस्ट्री की देन है. अगर इंडस्ट्री न हो तो लोग इतने अधिक मात्रा में शुगर केन उत्पादित नहीं करेंगे. मीन्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इट गिव्स जॉब अपॉर्चुनिटी टू कल्टिवेटर्स ऑल्सो. It is a good source of excise duty for central cost. It gives excise duty and it is a source of income for the central cost. As well as it gives sugar goods, khansari and molasses. Wrong written. Molasses, MOLLASSES, molasses, choba, and raw material for paper industries. As you know, it gives sugar. शुगर तो यह उत्पादित करता ही है, इसके अलावे गुड़ उत्पादित करता है, जगरी. एज वेल एज खांसारी, भूरा. गुड़ जैसा रहता है लेकिन भूरा दिखलाई पड़ता है, छोटा छोटा टुकड़ा. एंड मोलासेस, छोबा, that is considered as raw material for finding alcohol. It is used for making wine. यह मोलासेस से, जिसको हम लोग छोबा कहते हैं, इससे शराब बनाने के लिए अल्कोहल निकलता है. और इसका खोहिया, बैगेज, यह पेपर इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल के रूप में प्रयुक्त होता है. Try to consider indirectly it gives the raw material for different industries. In spite of it, it is considered as a seasonal industry because harvesting time is not present in the every month of the year. It has only limited crushing period.
due to it is considered as seasonal industry, as well as 662 sugar factories in India, and that are producing 15 million ton. In such way, a long series of sugar factories are present, and 60% sugar factories are present in northern India. But now we have need to discuss about its distribution. कहाँ कहाँ और किस तरह से शुगर मिल भारत में मौजूद है. Its 50% mills are present in UP and Bihar only, because it is considered as a good belt for sugarcane production. Especially in the Tarai of Himalayas, a lot sugar mills are present. As well as in the northern India, in Haryana and Punjab, some mills are present, because nowadays Haryana and Punjab are producing sugarcane also. अब इसका व्यावसायिक फसल के रूप में हरियाणा और पंजाब में भी इसका क्षेत्र बढ़ रहा है, एज वेल एज राजस्थान. बट मेनली besides of Haryana, Punjab, UP and Bihar, Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu and Andhra Pradesh also considered as the main producer of sugar cane in the southern India. Yes, and do you know, after the independence it was seen the production of sugar has increased in the southern India. दक्षिण भारत में जो शुगर केन उपजता है उसमें सुक्रोज की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण चीनी ज़्यादा तैयार होता है प्रति क्विंटल, जबकि उत्तर भारत में गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण तुरंत अगर पेराई का काम नहीं हुआ तो सुक्रोज सूखना शुरू करता है, जिसके कारण चीनी कम बन पाती है. That is the main cause of spreading the sugar mill in the southern India nowadays, and its raw material is heavy and perishable. इसका जो कच्चा माल होता है शुगर इंडस्ट्री का, वह शुगर केन होता है, जो काफ़ी भारी होता है और तुरंत ही सूखना शुरू करने वाला होता है. इसमें चीनी की मात्रा जैसे जैसे एक एक दिन बीतेगी कम होती चली जाएगी, क्योंकि उत्तर भारत में गर्मी अधिक पड़ती है. एंड ड्यू टू इट्स sugar cane can't be installed for long as the laws of sucrose inevitables. जैसे जैसे लंबा समय तक ये छील कर रखा हुआ रहेगा, वैसे वैसे सुक्रोज की मात्रा लिमिटेड होती जाएगी. एंड ड्यू टू इट इसे ज़्यादा लंबे दूरी तक ढोया नहीं जा सकता है, क्योंकि उसके सूखने की मात्रा अधिक होती है. As well as mostly sugar mills are present under cooperative due to seasonal nature. सीजनल नेचर होने के कारण यह कोऑपरेटिव क्षेत्र में ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि किसान उसके मेंबर्स होते हैं और जितना चीनी होगा उसी के आधार पर उन लोगों को शुगर केन की कीमत मिल पाएगी. Here nowadays we have need to discuss difference between the sugar industries of northern and southern India. इसमें हम लोग अब इस बात का अध्ययन करेंगे कि उत्तरी भारत के मिल में और दक्षिणी भारत के मिल और सराउंडिंग में क्या क्या अंतर है. So first, climate. On the base of climate we can watch the northern India's climate is harsh, more harsh than the southern India, due to the availability of seas in both sides, as the Bay of Bengal and as the Arab Sea.
and due to it the temperature is not going so high. Second is higher sucrose. दक्षिण भारत के चीनी के रस में सुक्रोज की मात्रा अधिक होती है क्योंकि वहाँ क्लाइमेट मॉइस्चर है, ज़्यादा सूख नहीं पाता है, रस के साथ वह पहिया से निकल जाता है। जबकि उत्तर भारत में सूखना शुरू करता है जिससे रस निकलता तो है लेकिन सुक्रोज की मात्रा पहिया में ही रह जाती है और कम चीनी तैयार होता है। लॉन्ग क्रशिंग पीरियड, एज वी हैव डिस्कस्ड इन द नॉर्दर्न क्लाइमेट इज सो ड्राई, ड्यू टू इट हैज शॉर्ट क्रशिंग पीरियड। केतारी को रगड़ने के लिए यहाँ कम समय मिलता है, जबकि दक्षिण भारत में इसको क्रशिंग करने के लिए एक लंबा समय मिलता है क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट मॉइस्चर है, जबकि उत्तर भारत का क्लाइमेट ड्राई है। नेक्स्ट, बेटर मैनेजमेंट। इन द नॉर्दर्न इंडिया मैनेजमेंट इज नॉट सो गुड and due to the better management the mills of southern India is giving high production, more production than the northern India. दक्षिण भारत के मिल अच्छे मैनेजमेंट की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं जिसके कारण कि वहाँ काफ़ी अधिक मैनेजमेंट मिलता है, जबकि कोऑपरेटिव में होते हुए उत्तर भारत के किसान उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। एज वेल एज कुछ एक विगत दशक में यह देखा गया है कि साउदर्न इंडिया में प्रोडक्शन धीरे धीरे बढ़ रहा है, जबकि उत्तर भारत में इसका प्रोडक्शन धीरे धीरे घट रहा है। एंड इसके कारण बस उत्तर भारत से मिल धीरे धीरे बंद हो रहे हैं, जबकि दक्षिण भारत में इसका मिल धीरे धीरे बढ़ रहा है। As well as now we are going to discuss about the problems of sugar industries. Actually, nowadays a lot problems are present before sugar industries, or we can say sugar industries are facing the following problems, in which first is low yield of sugar cane. जैसा हम लोगों ने कहा कि उत्तर भारत में शुगर केन से कम चीनी पैदा किया जाता है, जबकि खर्चा समूचा हो रहा है, जिसके कारण कि लो उत्पादकता भारत में पाई जाती है। दक्षिण भारत के आधार पर भी हम कह सकते हैं कि यहाँ हाईटेक मशीनों का प्रयोग नहीं होता है। आज भी भारत में हम लोग हाथ से उसको काटते हैं, छीलते हैं और तब उसको फैक्ट्री बैठाते हैं, जबकि दूसरे देशों में यह सारा काम मशीन कर लेती है, जिसके कारण कि वहाँ हाई यील्डिंग है जबकि भारत में लो यील्डिंग है, इसलिए हमारा कॉस्ट अधिक होता है। दूसरा है शॉर्ट क्रॉसिंग सीजन। हमारे यहाँ केतारी पैरने का सीजन जो है वह छोटा होता है। उत्तर भारत में तो और छोटा होता है, लेकिन दक्षिण भारत में भी छोटा होता है, क्योंकि यह मार्च अप्रैल में पेराई का काम होता है और उस समय हमारे यहाँ गर्मी की मात्रा बढ़ते चली जाती है। जबकि दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहाँ लंबा समय मिलता है पैरने के लिए, जैसे क्यूबा, छोटा सा देश है, चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, वहाँ का टेम्परेचर कभी भी इतना हाई नहीं होता है, इसलिए लंबा समय मिलता है पैरने के लिए, कोई आज, कोई कल, कोई 1 महीना के बाद, कोई 2 महीने के बाद। तीसरा, हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एज वी हैव डिस्कस्ड, ड्यू टू द हाई टेक्निक the production cost of foreign countries is lower than the production cost of India. भारत में अत्यधिक जनसंख्या है, जिसके कारण हम अधिकांश काम हाथों से करते हैं, जबकि दुनिया के दूसरे देश हाईटेक टेक्निक का प्रयोग करते हैं, जिससे कि उसका प्रोडक्शन कॉस्ट कम होता है। नेक्स्ट, ओल्ड एंड एब्सोल्यूट मशीनरी। भारत की अधिकांश मिलें पुराने ज़माने की है, अंग्रेज़ों के समय की, इसलिए वह पुरानी तकनीक पर निर्भर करता है
और पुरानी तकनीक में बहुत सी सारी चीज़ों को यूं ही फेंक दिया जाता है, जैसे मोलोसेस। मोलोसेस आप कभी जाकर के देखेंगे, वार्सलीगंज चीनी मिल को हम लोगों को देखने का मौका मिला है, तो वहाँ छोबा का लगभग 50% पानी में घुल करके नाली में चला जाता है। इसके खोइये को जला दिया जाता है, जबकि दूसरे देशों में नई तकनीक के आधार पर नई मशीनें लगी है जो खोइया से पेपर बना लेता है, मोलुसेस के समूचे पार्ट को निकाल लेता है और उससे अल्कोहल बनाने का मतलब शराब बनाने की फैक्ट्री बगल में लगी हुई रहती है, जो रॉ मटेरियल पूरा करते चली जाती है और वह उत्पादन लागत को कम करती है। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ बाय प्रोडक्ट्स, बेगेज एंड मोलसेस, जिसका जिक्र हमने ऊपर किया कि बेगेज मतलब खोइया, मोलसेस मतलब छोबा। इसके अलावे और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जिसका प्रयोग हम लोग चाहें तो बाय प्रोडक्ट्स के रूप में कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पुरानी मिल होने के कारण हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं, जबकि वह फेंक दिया जाता है। आवश्यकता है कि ऐसे प्रॉब्लम को सरकार नई मशीनों के द्वारा, नई टेक्नोलॉजी के द्वारा, नई टेक्निक्स के द्वारा आने वाले समय में दूर करेगी। एंड इन दिस वे वी कैन ओवरकम the problem of sugar industries. Thanks and rest. And in the next video we will discuss about iron and steel industry. Thanks.